يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله ما تعلمون عليم. وقال تعالى أقيموا الشهادة لله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لایا زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا ہے۔ انگن درود و سلام ہو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ طاہرہ پر، جن کو رب کائنات نے رشد و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ محترم حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے حالات، مسلمانوں کے حالات، ملک کے حالات کس طریقے سے ہیں، بخوبی تمام احباب، عقل و شعور رکھنے والے احباب جانتے ہیں کہ آج کی مناسبت کیا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ملک کے اندر عام انتخابات کے ایام چل رہے ہیں۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اسلام نے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے تعلق سے آپ تمام احباب کے سامنے کچھ باتیں کروں۔ اس سے قبل قرآن مجید کی جو آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد بھی دلایا اللہ تبارک و تعالی۔ رب العالمین نے پہلے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان رکھنے والے لوگوں، مسلمانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، صرف مسجدوں میں نہیں، ہمیشہ ڈرتے رہو۔ اپنی پوری زندگی کے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بات کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ مسلمان اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ڈر و خوف اپنے دل میں محسوس کرے، اپنی زندگی کے اندر صرف مسجدوں میں ڈر و خوف محسوس کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر اس ایک آیت کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی آدمی نافرمانی نہیں کرے گا اور اللہ سے نڈر ہو کر کبھی زندگی نہیں گزارے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے مسلمانوں، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، تمام سے قرآن مجید مخاطب ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ویسے ہی ڈرنا چاہیے۔ اب ہم لوگ جو ہے مساجدوں میں آئے ڈرے،
अपनी जिंदगी के अंदर कारोबार में, तिजारत में, लेन देन में, चलते फिरते में, हुकूक में, वालिदैन के हुकूक में, पड़ोसियों के हुकूक में, रिश्तेदारों के हुकूक में, जे तमाम चीजों के अंदर अल्लाह से डरना छोड़ दें, निडर हो जाएं। ये हमारे मुसलमानों की जिंदगी जो है ऐसी नहीं होती है, बल्कि हर हालत में चलते फिरते भी अपने हुकूक के साथ, वालिदैन के हुकूक के साथ, रिश्तेदारों के हुकूक के साथ, पड़ोसियों के हुकूक के साथ, जो कारोबार हम करते हैं उन कारोबारियों के साथ, तमाम मामलात के अंदर हर हाल में हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए। यहाँ यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस आयत का एक छोटा सा टुकड़ा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को बताया है, क्या लोगों मुसलमानों, तुम जिस तरीके से मुसलमान बनकर पैदा हुए, अंदाजा लगाइए इस आयत के बारे में कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मुसलमान बनाकर पैदा किया है, तुम मुसलमान बनकर पैदा किए हुए हो और तुम्हारी जिंदगी मुसलमानों की है, और तुम वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत भी आए तो मुसलमान बनकर तुम मरो। अब मौत के ताल्लुक से किसी को ये इल्म नहीं है कि आदमी जिंदगी के ताल्लुक से तो हम सोच सकते हैं कि हम आप नमाज को आए हैं, अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखा तो जाएंगे, खाना खाएंगे, घर में आराम करेंगे, कारोबार में जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दिया है। लेकिन मौत के ताल्लुक से किसी को, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना इंदल्लाह इल्मुस्साअ, जो कुरान मजीद की सूरह लुक़मान की आखिरी आयत है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मौत कब आएगी, उसमें से एक ये भी है कि मौत कब आएगी, किस हालत में आएगी, चलते फिरते में आएगी, बुढ़ापे में आएगी, ज़ईफ़ी में आएगी, बीमारी में आएगी, सफर में आएगी, हजर में आएगी। आदमी सोता हुआ मर जाता है, बैठा हुआ मर जाता है, खाते हुए मर जाता है, सफर पर चल रहा है, किसी को मौत कहाँ ढूंढ कर आ रही किसी को मालूम नहीं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैस, इसके अंदर यही बताया गया कि उसके बारे में 5 चीजों का इल्म किसी को नहीं, उसमें से एक मौत है। हम आज हट्टे खट्टे हैं, नौजवान हैं, कोई अल्लाह ने बीमारी भी नहीं दिया है, चल कर आए हैं या अपनी अपनी सवारी में आए हैं, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं है कि उसकी मौत कहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर, जो सूरह आल इमरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्या है मोमिनो, मुसलमानों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। जिस तरीके से रब्बुल आलमीन ने तुम्हें डरने का हक दिया है उसी तरीके से डरो, मसाजिदों में डरे। और जैसा कि मैंने शुरू तकरीर में ही, वाज में ही कह दिया कि अल्लाह से सिर्फ मस्जिदों में ही डरना नहीं है, बल्कि हमारे हर लेन देन में, हमारे हर कारोबार में, हमारे हर रिश्तेदारी में, हमारे हर हुकूक में, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे वो जो भी मामलात हो, हर हाल में अल्लाह से हम लोगों को डरना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निशान लगा दिया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, के लोगों, जिस तरीके से तुम मुसलमान बनकर पैदा हुए, मुसलमान बनकर तुम पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। कलमा क्या है? एक गवाही होती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मुसलमान गवाही देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम गवाही देते हैं इबादत के सिवा, इबादत के लायक, रुकू के लायक, सजदे के लायक, मुनाजात के लायक, हमारी हाजतों को पूरा करने के लायक, हमारी दुआओं को कबूल करने के लायक, हमारी तकलीफों को दूर करने के लायक, और हमारी तिजारत और कारोबार में खैर बरकत अदा करने के लायक तेरे सिवा कोई नहीं है। यही हम लोग गवाही देते हैं, इसके सिवा हमारा ईमान किसी पर नहीं है। और उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, हम गवाही देते हैं, सिर्फ उंगली से नहीं, जबान से नहीं, दिलो जान से हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल है। हम उनकी रिसालत पर
इकरार करते हैं, हम उनकी नबूवत पर इकरार करते हैं, उनके ऊपर उतारा गया कुरान पर हम इकरार करते हैं, उनके ऊपर जो है जो नमाजें फर्ज की गई है उनके ऊपर हम इकरार करते हैं। ये शहादत होती है, गवाही होती है, और उस गवाही के साथ हम ऐलान करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो गवाही एक बहुत बड़ी नेमत होती है, गवाही एक जो है बहुत बड़ी अमानत होती है। इसी अमानत के साथ हमारा कलमा होता है, इसी अमानत के साथ हम जिंदगी में सांस लेते हैं, और जिंदगी में सांस लेने के बाद आप और हम जानते हैं कि कई मर्तबा देखे भी होंगे, बच्चा जरा सा सांस लेता है, लोग आकर कान में अजान देते हैं, पहले सुनाते हैं कलमे को, माँ की आवाज को, बाप की आवाज को, रिश्तेदारों की आवाज को मुसलमान नहीं सुनाता, बल्कि अशहदु अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के कानों में फूंका जाता है, बताया जाता है जिस तरीके से तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बड़ी नेमत इस्लाम से सरफराज करके इस्लाम के अंदर, दीन के दायरे के अंदर, इस्लाम के दायरे के अंदर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे पैदा किया है तो तेरी मौत भी कलमे के साथ होना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिसकी जिंदगी कुरान व हदीस पर, नमाजों की पाबंदियों पर, झूठ से बचते हुए, जिना व बदकारी से बचते हुए, चोरी चगली से बचते हुए, गीबत से बचते हुए, धोखे से बचते हुए, दगाबाजी से बचते हुए जिसकी जिंदगी होती है वो मोमिनाना जिंदगी होती है। और इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही कहा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी पैदाइश, तुम्हारा लड़कपन, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी और तुम्हारी जिंदगी पूरी जो जब मुसलमान बनकर जिंदगी गुजार रहे हो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, लोगों तुम हमेशा ये याद रख लो तुम्हारा मरना भी होगा, तो तुम्हारा मरना जो है मोमिन बन के मरोगे, कामयाब हो जाओ। और ये भी एक बात है, नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, जिसका दुनियावी जिंदगी के अंदर खातिमा बिल खैर होता है, उसकी मौत खैर के साथ होती है, भलाई के साथ होती है, कलमे शहादत के साथ होती है, कलमे तय्यबा के साथ होती है, और वो मोमिन बनकर मरता है जिसकी मौत बिल खैर के साथ होती है, वो क़यामत के दिन भी जो है कामयाब होगा। तो मेरे दोस्तों, जिस तरीके से मैंने यही मुनासिब समझा आज जो वोट के ताल्लुक से चंद बातें कहूँ, वही आयतें लेकर आया हूँ। जिस तरीके से हम कलिमा पढ़ते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, एक किस्म की गवाही होती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला तक्तुमुश शहादा, यह भी एक गवाही होती है, वमन यक्तुमहा फइन्नहु आतिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ये आयत भी उतारी, अक़ीमुश शहादत लिल्लाह, तुम अल्लाह को गवाही दो, अल्लाह की गवाही दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज वोट के ताल्लुक से तीन चीजें अपनी बात को बयान करके सामने रखूंगा आप लोगों के। एक तो यह है कि गवाही देना, जिस तरीके से हम गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या कहा, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और गवाही देना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ना वो नूर है, न नारी है, न नूरी है, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि जिस तरीके से तुम अल्लाह के बंदे हो, मुझे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदा बनाकर रसूल बनाया। तो पहली बात तो यह है, जहां हम वोट देने के लिए जाते हैं, 3 चीजें बुजुर्ग उलमाए कराम ने बयान किया है। एक तो यह है कि शहादत, एक आदमी जहां हम लीडर मुंतखब करते हैं, जो अंग्रेजी लफ्ज एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हम वोट दे रहे हैं चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, या चंद वक्ती तौर पर कामयाब होने के लिए। और वो मसाजिदों को ढाने वाला, मदारिसों को ढाने वाला, अजान को बंद कराने वाला,
मुसलमान बच्चियों के सर के ऊपर से आंचल को खिंचाने वाला, मुसलमान बच्चियों को पर्दे से बेपर्दा करने वाला, और सिर्फ हम चंद रुपयों के लिए ऐसे आदमी की गवाही देते हैं तो कल क़ियामत के दिन उनके आंचल लड़कियों के बेपर्दे से बेपर्दा होना, मस्जिदों की दीवारें ही नहीं ढाते हैं बल्कि इस्लाम की बुनियाद को मुनहदिम कर दिया जाता है। इस्लाम की बुनियादों के ढांचों को मजबूती की जगह हिला दिया जाता है। उसके गवाह आप भी बन जाएंगे। अगर हम लोग इस वक्त होश संभाल कर सही आदमी का इंतखाब नहीं करेंगे, आप और हम देखते हैं कई सालों से अजान होती है तो लोगों को चिढ़ होती है, अजानें बंद कराने की बात होती है, नौजवान बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं तो उनको पर्दे से बेपर्दा कर दिया जाता है, निकाब ओढ़ा जाता है तो उनके निकाब के साथ खिलवाड़ होती है। आप और हम देखे हैं हमारे अपने महबूब वतन हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई आदमी अपने पैसों के लिए गलत आदमी का इंतखाब करेगा जिसको सलाहियत नहीं है, मुल्क की हिफाजत करने की सलाहियत नहीं है, वो मुसलमानों की क्या हिफाजत करेगा? उसके अंदर क्या सलाहियत होगी? इसी तरीके से जो आदमी जिहालत को पहुंच जाता है, आपको और हमको मालूम होगा कि अबू जहल का नाम अबू जहल नहीं था बल्कि उमर था, लेकिन उसकी जिहालत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जहालत का बाप कहा था। इसी तरीके से हम अकल से, दानिशमंदी से, होश के साथ अगर किसी अच्छे आदमी का इंतखाब नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि हम अल्लाह के पास गवाह बन जाएंगे। उसीलिए शहादत कहा जाता है, उसीलिए शहादत कहा जाता है, गवाह बन जाएंगे और हम भी मस्जिदों के ढाने के हिस्सेदार बन जाएंगे, मदारिसों के ढाने के हिस्सेदार बन जाएंगे, कुरान मजीद को जलाने वाले के हिस्सेदार बन जाएंगे, लड़कियों के, मासूम बच्चियों के पर्दे की हम लोग जो है जो खिलवाड़ करते हैं वो उसके हम भी हिस्सेदार बन जाएंगे। ये यकीन मानकर जो है हम लोगों को एक अच्छे आदमी का इंतखाब और मुंतखब करना चाहिए कि वो कम से कम जो है मुसलमानों की हिफाजत ना करे तो उनके ऊपर उंगुश नुमाई भी ना करे। मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दिया है। कुरान की तालीम और तरबियत जो है वह इन्ना लहु लहाफिजून, जहाँ रब्बे कायनात ने कहा कि हम ही कुरान को उतारा उसकी हिफाजत करेंगे। अगर कोई आदमी, अगर कोई लीडर, कोई जो है अमीर इस्लाम की, दीन की, मुसलमानों की हिफाजत नहीं करना चाहता है तो मैं आप तमाम अहबाब से यही कहूंगा कि वो ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए कि वह हमारे इस्लाम पर आंच आने ना दे, हमारे इस्लाम की तरफ उंगुश नुमाई ना करे, दीन की तरफ उंगुश नुमाई ना करे, हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को बेपर्दा ना करे। ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए, वही शहादत होती है। दूसरा यह है कि सिफारिश और शिफात। अब हम वोट देते हैं, पहले तो ये गवाही हो गई, शहादत। दूसरा सिफारिश, आदमी वोट देता है, गोया कि ये सिफारिश होती है कि एक नेक आदमी है, ये आदमी जो है हमारे एमपी बनने के काबिल है, हमारा जो है अमीर बनने के काबिल है। हम लोग ही जो है उसको मुंतखब करके भेज रहे हैं, तो ऐसे हालात में हम सिफारिश भी कर रहे हैं, उसकी शिफात भी कर रहे हैं, तो नेक लोगों का कम से कम 2 लोग भी जो है बराबर के बराबर हैं, जो भी जाहिल हैं, जो भी जहालत की हद तक पहुंच चुके हैं, जो भी जो है अमानतदार नहीं है, जो भी जो है खयानत नहीं है, लेकिन उसमें से जो कम जो है जहालत में है, जहालत में जो कम है, कम से कम उसका इंतखाब करें। जी, यहाँ हम लोग जो है नंबर पर खड़े होकर किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी का नाम ले नहीं सकते हैं जी। इसीलिए 2 चीजें जो आप लोगों के सामने कुरान और हदीस के साथ बयान किया, और उसके बाद एक तो यह हुआ शहादत हुई, दूसरा यह हुआ शिफात हुई, दूसरी ये होती है कि हम लोग वकालत करते हैं। जिस तरीके से वकील हजरात कोर्ट कचहरी के अंदर वकालत करके इंसानों की भलाई के लिए काम करते हैं, इसी तरीके से मुसलमान वकालत करते हैं कि ये आदमी अच्छा है। अगर हम लोग मुंतखब कर रहे हैं तो हम लोगों को चाहिए
कि इन तीनों बातों का हम जो है ख्याल रखें। एक तो शहादत दें, एक दूसरी शिफात है, तीसरा जो है हम वकालत कर रहे हैं, तो इसका पूरा पूरा ख्याल रखें उसी चंद पैसों के लिए। आपको मालूम होगा 2003 में जो हिंदुस्तान की हुकूमत गिरी थी, और दरमियान में ये बात बोल देता हूँ कि हम लोग ये सोचते होंगे कि मेरा ये वोट से कुछ बदलने वाला नहीं है, मेरे ये वोट से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये वोट से आपका जो है, ये आप वोट देना आपका हक है, जमहूरी हक होता है। आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, नेक लोगों को, अच्छे लोगों को कामयाब बनाइए, जो आपके लिए मुहाफिज बने, आपके फायदे के लिए जरूरत पड़ी तो आपका फायदा वो पहुंचाए। ऐसे ऐसे लोगों को जो है आप मुंतखब कीजिए, और ये ना सोचें कि मेरा ये वोट से कुछ बदलने वाला नहीं है, मैं ये वोट नहीं दूंगा तो हमारा हस्कोटा इधर से उधर नहीं हो जाएगा, ये मेन रोड इधर से उधर नहीं हो जाएगा, हाजी अमरे उधर से ईदगाह की तरफ नहीं हो जाएगी। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि 2003 में एक वोट की वजह से हुकूमत गिर गई थी। तमाम लोगों के ज़हनों में है, नौजवानों के, जब जवानी की दहलीज पर थे 2003 में, 20 साल पहले, एक वोट की वजह से 8 दिन में हुकूमत गिर गई थी, बस फिर एक वोट की वजह से फिर हुकूमत कायम हुई। अब अंदाजा लगाइए कि वोट की कितनी अहमियत है। वोट हमारा हथियार होता है, हमारा जो है एक हथियार होता है, क्योंकि इसी वक्त जो है मुसलमानों की आओ भगत, सलाम, खैर खैरियत, उनकी जो है तकलीफ, उनकी मुसीबत, उनका कारोबार, उनकी अजानें, उनकी मस्जिदें, उनके घरों बार, उनके रिश्तेदार, इसी वक्त लोगों के ख्याल में आते हैं। कब इलेक्शन के वक्त में, दूसरे वक्त में याद नहीं आते हैं। तो ये मोमिन का जो है एक हथियार होता है, आप सही इस्तेमाल कीजिए, फायदा पहुंचाइए आपको भी, अपने आने वाली नस्ल को भी, अपने अहलो अयाल को भी, अपने खानदान कबीले को भी, ये जहन में रखकर आप वोट दीजिए। और कौन नहीं जानता कि रमजान का चांद होता है तो लोग कहाँ कहाँ से गवाही लेते हैं, शहादत लेते हैं, नहीं लेते हैं रोजा रखने के लिए। इसी तरीके से हम लोगों को भी जो है, जो आदमी मुंतखब होने के लिए, जिनका इंतखाब होता है, जिनका जो है इंतखाब होता है, इनके ताल्लुक से भी जानकारी ले कि ये आदमी सही है कि नहीं है, ये आदमी मुसलमानों की हिफाजत कर सकता है या नहीं कर सकता है, या कौम की हिफाजत कर सकता है नहीं है, ये जो है जिहालत के अंदर जाएगा कि या नहीं जाएगा, ये जो है सूद लेगा कि नहीं लेगा, तमाम चीजों का जायजा लेकर मुसलमानों को जो है वोट करना चाहिए। और इसका भरपूर ख्याल रखें, पूरी हम लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है। ऐसा नहीं है कि कोई आया शाम के वक्त में 500,000 रुपये दे दिए, जी मरता क्या ना करता, गया वोट दे दिया, और आपके एक वोट की वजह से जो है सही आदमी लुढ़क गया, बासलाहियत आदमी, उसकी हार हो गई, और जो जलील था, जिसके अंदर सलाहियत नहीं थी, जो जहालत को पहुंच चुका था, जो रजील था, और आपके ऊपर जो है हावी हो गया, और आप ही को 1000 रुपये दिया, 500 रुपये दिया, कल के दिन आपके ही ऊपर हावी हो गया और आपके लिए तकलीफ का सामान बन गया, तो क्या होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हकीमीन ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया, वला तक्तुमुश शहादा, लोगों जब तुम गवाही देते हो, ये वोट क्या है, ये गवाही होता है, वोट जो है गवाही देता है। अल्लाह को डरिए, क्योंकि आज 500 रुपये हम ले लेंगे, 1000 रुपये ले लेंगे, और वोट जो है ये कैसे आदमी को दे दिए जिसकी वो सलाहियत ही ना रखता हो, कल का दिन उसे पछतावा होगा, मुश्किलों में फंसोगे, तकलीफों में फंसोगे, घर से बेघर हो जाओगे। जी ऐसी चीजों से बचने के लिए हम लोगों को होश के साथ होश संभालना चाहिए और सोचना चाहिए कि इन 500 रुपयों से कौम की कितनी बर्बादी होगी, अपने आने वाली नस्ल की कितनी बर्बादी होगी, 5 साल तक कितने तकलीफें होंगे, कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, के लोगों मुसलमानों तुम अल्लाह से डरो, हर हाल में डरो, चलते फिरते, उठते बैठते, हर मामलात के अंदर, हर रिश्तेदारी के अंदर, हर मामलात के अंदर तुम हमेशा सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक डरते ही रहो। वला तक्तुमुश शहादा, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब मुसलमान बनकर पैदा हुए हो, जिंदगी गुजार रहे हो, तो तुम्हारा खातिमा भी जो है मुसलमान बनकर हो।
मुस्लिम बनकर हो, सूद के पैसे लेते हुए नहीं, रुश्वत के पैसे लेते हुए नहीं, 500 को अपना ईमान बेचते हुए नहीं, 200 को अपना ईमान बेचते हुए नहीं, अपना कलमा बेचते हुए नहीं, अपनी शहादत बेचते हुए नहीं, अपनी वकालत बेचते हुए 500 रुपयों को नहीं, बल्कि तुम्हारा खातिमा भी हो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू। क्या है मोमिनो मुसलमानों, तुम आपस में एक मुसलमान भाई, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैन अखवैकुम। ऐ मुसलमानों, तुम आपस में भाई भाई हो। मुसलमान एक कलमा पढ़ने वाला है, एक अल्लाह को मानने वाला है, एक काबा उसका है, एक मदीना उसका है, एक कुरान है, एक नबी है। तो इसी तरीके से इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान का भाई होता है। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू। ऐ लोगों मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो और तमाम के तमाम मिलकर थामो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर तफरीका बाजी हो जाए, पार्टी बाजी आ जाए, पार्टी के अंदर जो है तुम पार्टी बनाओ और दूसरे लोग उस पार्टी का फायदा उठाकर वो मुत्तहिद हो जाए। आज देखिए, एक अल्लाह को, ये कुरान को मानने वाले तफरीकों में बटे हुए हैं और कई खुदाओं को मानने वाले आज एक होकर मुसलमानों को बर्बाद करने की पूरे मशवरे होते हैं, पूरे उनके जो है मशवरे मीटिंगें होती। ये खुदा को मानने वाले बिखरे पड़े हुए हैं और कई खुदाओं को मानने वाले एक होने की सिर्फ इस उम्मत को मिटाने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिटाने के लिए एक हो रहे। ये हमारा मोमिनाना वस्फ नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू। क्या है लोगों मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को सब के सब मिलकर मजबूती के साथ थाम लो। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पकड़ा, ऐसा नहीं, मजबूती के साथ थाम लो। वला तफर्रकू, और अपने अंदर पार्टी बाजी मत बनाओ, फिरके बंदियों के अंदर ना बटो, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और लोग तुम्हें उखाड़ कर फेंक देंगे, तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेगी, दास्तानों में ऐसे हालात आ जाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हमेशा मुत्तहिद रहें, मुत्तहिद बनकर जिए जिंदगी के अंदर। आज हमारा वोट भी है तो मुत्तहिद होकर एक अच्छे आदमी का इंतखाब करें जो 5 सालों तक ना ही कुरान को तकलीफ देने वाला हो, कुरान को जलाने वाला हो, ना ही बहू बेटियों की इज्जत और इज्जत को नोचने वाला हो। ऐसों का इंतखाब कीजिए। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन अहकमुल हकीमीन हम तमाम को कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा दे, तफरीका बाजी से हिफाजत फरमा ले। अल्लाह फिरका बंदियों से हमारी हिफाजत फरमा ले। अल्लाह आज जो हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत के अंदर जो आज इंतखाबात हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम को मुसल्लत ना फरमा जो मुसलमानों के लिए दुश्मन बन जाए, इस्लाम के लिए दुश्मन बन जाए, पर्दे के लिए दुश्मन बन जाए, कुरान के लिए दुश्मन बन जाए, मसाजिदों के लिए दुश्मन बन जाए, मदारिसों के लिए दुश्मन बन जाए। इन सब पर हमको मुसल्लत ना फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अमन वाला लीडर हमारे लिए मुंतखब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मसाजिदों की तो हिफाजत फरमा, मसाजिदों की हिफाजत फरमा, मदारिसों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान व माल की अल्लाह तो हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन मुसलमान माँ और बहनों की इज्जत व आबरू की तो हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम को दीन की सही समझ अता फरमा, इस्लाम को समझने की तौफीक व हिदायत अता फरमा। अल्लाह हर किस्म की बुराइयों से हिफाजत फरमा। अल्लाह जिस तरीके से हम मुसलमान बनकर तू बनाकर हमें पैदा किया है, जिंदगी भी मुसलमाना जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आखिरी वक्त आए तो कलमे शहादत नसीब फरमा। मौत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को तेरे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुबारक से आब कौसर का प्याला नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व इय्याकुम बिल आयातिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल मलिक